ایک ایسا انسان جسے قرآن نے 4 الگ الگ مقامات پر نبی کہہ کر یاد کیا، جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ وہ بہترین بندہ تھا، ہمیشہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والا۔ اسی انسان نے ایک دن اپنی زندگی کی ہر نعمت کھو دی، اور پھر بھی اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ نہ نکلا۔ یہ کوئی زیب داستان نہیں، یہ قرآن کی گواہی ہے، اور یہ صرف ایک آزمائش کی کہانی نہیں، یہ ایک پوری زندگی کی کہانی ہے جو خوشحالی سے شروع ہوئی، تباہی سے گزری، اور ایک ایسے انجام پر ختم ہوئی جسے آج تک انسانیت مثال بنا کر پیش کرتی ہے۔ نام تھا ایوب علیہ السلام۔ تاریخ اس کی پیدائش کا کوئی متفقہ سن نہیں دیتی، اور نہ ہی اس کے وطن پر علماء کبھی متفق ہوئے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، کچھ کہتے ہیں وہ عیسیٰ کی اولاد میں سے تھے، کچھ روایات انہیں شام کے علاقے حوران یا دمشق کے قریب رکھتی ہیں، جبکہ کئی مفسرین کا خیال ہے کہ ان کا تعلق روم کی سرزمین سے تھا۔ یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی کہانی نسل در نسل مختلف زبانوں اور روایتوں میں محفوظ ہوتی رہی، اور ہر معاشرے نے اسے اپنے انداز میں یاد رکھا۔ مگر ایک بات پر کوئی اختلاف نہیں، قرآن نے ان کا نام سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء اور سورۃ سات انبیاء کی صف میں۔ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کے پاس وسیع زمینیں تھیں، ہزاروں اونٹ، بھیڑیں اور مویشی تھے، اور خدمت گاروں کی ایک بڑی جماعت تھی جو ان کے گھر کو چلاتی تھی۔ کچھ روایات میں 12 بیٹوں کا ذکر ہے، کچھ میں 14 کا۔ ان کی بیوی، جن کا نام اکثر روایتوں میں رحمہ یا رحیمہ لکھا گیا ہے، خود حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھی، یعنی نبوت اور صبر کا خون دونوں طرف سے ان کے گھر میں بہہ رہا تھا۔ مگر جو بات قرآن خود بتاتا ہے وہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کتنا مال تھا، قرآن بتاتا ہے کہ وہ کیسے انسان تھے۔ سورہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک بہترین بندہ تھا، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ زمین پر آج اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں، کہ اللہ نے اسے لمبی عمر اور بے پناہ دولت دی، پھر بھی نہ اس کے دل میں تکبر آیا، نہ خود غرضی۔ اس کی دولت میں اس کے خاندان، اس کے خدمت گاروں اور آس پاس کے ہر غریب اور ضرورت مند کا حصہ تھا۔ وہ کبھی مہمانوں کے بغیر کھانا نہ کھاتا، یتیموں کی کفالت کرتا، بیواؤں کی شادیاں کرواتا۔ یہی وہ خوبی تھی جو آگے چل کر ان کی سب سے بڑی پہچان بنی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب آزمائش کا بیج بویا گیا۔ روایات کے مطابق جب فرشتوں نے ایوب کی تعریف کی تو ابلیس نے سن لیا۔ اس نے سوچا کہ یہ تعریف اس لیے ہے کہ اس شخص کے پاس ہر نعمت موجود ہے، مال، اولاد، صحت، عزت۔ اگر یہ سب چھین لیا جائے تو دیکھیں یہ کیسا بندہ رہتا ہے۔ یہ مکالمہ صریح قرآنی نص نہیں بلکہ تفسیری روایات کا حصہ ہے، مگر جو حقیقت اس سے نکلتی ہے وہ قرآن کی اصل روح سے میل کھاتی ہے، کہ ہر آسانی کے پیچھے ایک امتحان چھپا ہوتا ہے، اور جتنی بڑی نعمت اتنی ہی بڑی آزمائش کی گنجائش۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہر نعمت واپس لی جانے لگی۔ پہلے مال گیا، کہیں سیلاب کی زد میں، کہیں تیز آندھی کی نظر، کہیں مویشیوں کی اچانک ہلاکت۔ وہ شخص جس کے پاس کبھی گنتی سے باہر جانور تھے، ایک دن خالی ہاتھ رہ گیا۔ پھر اولاد گئی، ایک ہی حادثے میں بیک وقت اس کے سب بچے اس سے چھن گئے، اور آخر میں خود اس کا جسم ایک ایسی بیماری کی لپیٹ میں آ گیا جس کا نام قرآن نے نہیں بتایا، اور جس کی نوعیت کے بارے میں روایات مختلف باتیں کہتی ہیں۔ کچھ کہتی ہیں یہ جلد کی شدید بیماری تھی، ایسی کہ جسم پر زخم پڑ گئے، وہی تفصیل جو تورات کی کتاب ایوب میں بھی محفوظ ہے۔ کتنا عرصہ یہ حالت رہی، اس پر بھی روایات میں اختلاف ہے، کوئی 7 سال کہتا ہے، کوئی 18۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام 80 سال تک صحت اور خوشحالی میں رہے، اور اس کے بعد کی بیماری کا عرصہ الگ سے شمار ہوتا ہے۔ خود قرآن کوئی مدت نہیں بتاتا۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ یہ عرصہ اتنا طویل تھا کہ ایک ایک کر کے سب لوگ ان سے دور ہو گئے۔ اور یہاں ایک نکتہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ اس کی 41ویں آیت میں ایوب علیہ السلام کی زبان سے صرف ایک فریاد نکلتی ہے کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان نے خود بیماری بھیجی، کیونکہ قرآن کے مطابق
शैतान को सिर्फ वसवसा डालने की ताकत दी गई है, बीमारी या मुसीबत खुद पैदा करने की ताकत नहीं। बल्कि इस फरियाद का असल मतलब ये है कि शैतान इस तकलीफ का फ़ायदा उठाकर अय्यूब के दिल में मायूसी और नाशुक्री पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ये फ़र्क छोटा नहीं, ये इस बात की कुंजी है कि असल जंग जिस्म की बीमारी से नहीं, दिल की कैफियत से थी। और दिलचस्प बात यह है कि जब सूरतुल अंबिया में अय्यूब की दुआ नकल हुई तो उन्होंने शैतान का नाम तक ना लिया, सिर्फ इतना कहा कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। और यहीं से वो किरदार सामने आता है जिसके बगैर ये कहानी अधूरी है, उनकी बीवी। रिवायात में उसे रहमा या रहीमा कहा गया है। जब सब चले गए वो रुकी रहीं। जब मुआशरा खौफजदा होकर उन्हें शहर से निकालने पर मजबूर हुआ तब भी वो साथ रहें। वो सुबह दूर निकल जाती, लोगों के काम करती, धागा काटती और जो कुछ कमाते लेकर वापस आ जाती, अपने बीमार शौहर की तीमारदारी करने। रिवायात में कई वाक़यात आते हैं जहां किसी ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, कभी ये कहकर कि ये बीमारी मुताद्दी है, दूर रहो, कभी झूठे इलाज का लालच देकर, कभी माल और ज़मीन की पेशकश करके। हर बार वो वापस अपने शौहर के पास आएं और हर बार साबित कदम रहें। ये तफसीलात अगरचा रिवायत पर मबनी हैं और उनकी संद इतनी मजबूत नहीं जितनी कुरान की नस, मगर ये एक ऐसी नफसियाती हकीकत बयान करती हैं जो आज भी सच है कि मुश्किल वक्त में इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों से पहुंचता है जो उसके करीब तरीन रिश्तों को उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी दौर की एक रिवायत ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। कहा जाता है कि एक मौका पर अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से नाराज़ हो गए और कसम खा ली कि सेहत याब होने पर उन्हें 100 कूड़े मारेंगे। कुछ रिवायात कहती हैं ये नाराज़गी इसलिए थी कि उनकी बीवी ने किसी वसवसे में आकर कोई ऐसी बात कह दी जो अय्यूब को नागवार गुजरी। जब शफा का वक्त आया तो ये किस्म अय्यूब के लिए एक नई उलझन बन गई, क्योंकि वो अपनी वफादार बीवी को, जिसने 18 साल उनकी खिदमत की थी, तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इसी मुश्किल का हल खुद कुरान में सूरह सिस की 44वीं आयत में मिलता है, जहां अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने हाथ में सरकिंडों का एक मिट्ठा लो और उससे हल्की सी ज़रब लगाओ ताकि किस्म भी पूरी हो जाए और किसी को तकलीफ भी ना पहुँचे। इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उसे साबिर पाया, क्या खूब बंदा था, हमेशा अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। ये छोटा सा वाक़या दर हकीकत एक बड़ा सबक देता है कि इंसाफ और रहम के दरमियान एक ऐसा रास्ता हमेशा निकाला जा सकता है जो न अहद तोड़े न किसी का दिल दिखाए। 18 साल या जितना भी अरसा रहा हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान से कभी खुली शिकायत नहीं की। एक रिवायत में आता है कि उनकी बीवी ने एक दिन नरमी से पूछा कि आप दुआ क्यों नहीं करते, और अय्यूब ने जवाब दिया कि हमारे खुशहाल दिन इतने लंबे थे कि अब तकलीफ़ के दिनों में शिकायत करते मुझे शर्म आती है। इस कैफियत की सबसे बेहतर तशरीह है जिसे कुरान ने अव्वाब यानी बार बार अपने रब की तरफ लौटने वाला कहा। फिर वो लम्हा आया जिसे कुरान ने खुद अपने अल्फाज में महफूज किया। सूरत इस की 42वीं आयत में हुक्म मिलता है कि ज़मीन पर पाँव मारो, ये है ठंडा पानी, नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी। और उसी लम्हे एक लंबी खामोशी के बाद शफा का दरवाज़ा खुल जाता है। एक हदीस में आता है कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम उसी चश्मे में नहा रहे थे और नंगे थे तो उनके सामने सोने की टिड्डियाँ गिरने लगीं। उन्होंने फ़ौरन उन्हें समेटकर अपने कपड़े में भरना शुरू कर दिया। अल्लाह ने पूछा कि ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें दौलतमंद नहीं बना दिया? फिर तुम अभी से सोना क्यों समेट रहे हो? और अय्यूब ने जवाब दिया कि मेरे रब, तेरी रहमत से कौन सैर हो सकता है। ये छोटा सा मुकालमा बताता है कि शुक्र की इंतहा क्या होती है। नेमत वापस मिलने पर भी हिर्स नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से मज़ीद कुर्बत की तलब। सूरतुल अंबिया में अल्लाह फरमाता है कि हमने उसकी फरियाद सुनी, उसकी तकलीफ़ दूर की और उसे उसका ख़ानदान लौटा दिया, बल्कि इतना ही और साथ दे दिया, अपनी रहमत के तौर पर और समझने वालों के लिए एक निशानी के तौर पर। और जो औरत 18 साल तक खामोशी से काम करती और रात को वापस आकर एक बीमार जिस्म की तीमारदारी करती रही, इसी औरत ने वो लम्हा देखा जिसका इंतज़ार उसने कभी छोड़ा नहीं था। रिवायात कहती हैं कि जब रहमा घर लौटें और अपने सेहत याब शौहर को देखा तो पहचान न सकें, क्योंकि उनकी जवानी और खूबसूरती अल्लाह के हुक्म से दोबारा लौटा दी गई थी।
वही लोग जो कभी दूर हो गए थे वापस आए। वही शहर जिसने एक बीमार नबी को बाहर निकाला था, उसी शहर ने अपने दरवाजे खोल दिए। यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो अक्सर बयान ही नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग अय्यूब की कहानी को उनकी शफा पर ख़त्म समझते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी वहाँ से मज़ीद कई दिहाइयों तक जारी रही। रिवायात बताती हैं कि शफा के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी जवान औलाद भी वापस दी गई और उसके साथ इतनी ही और औलाद अता की गई, जैसा कि खुद कुरान ने कहा कि उसका ख़ानदान दुगना कर दिया गया। उनकी दौलत, उनकी ज़मीनें, उनके मवेशी, सब कुछ पहले से भी ज़्यादा लौटा दिया गया। कुछ रिवायात के मुताबिक वो अपनी सेहत याबी के बाद 70 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहे। इब्न जरीर तबरी और कई दीगर उलमा के मुताबिक उनकी कुल उम्र तकरीबन 93 साल थी, जबकि कुछ रिवायात उससे भी ज़्यादा उम्र का जिक्र करती हैं। इब्न कसीर के हिसाब से अगर वो 80 साल सेहत में रहे और फिर 18 साल बीमारी में, तो उनकी उम्र कम अज़ कम 87 से 98 साल के दरमियान रही होगी। वल्लाह आलम। और जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो नबूत का सिलसिला उनके ख़ानदान में जारी रहा। रिवायत में आता है कि उन्होंने अपनी नबूवत की जिम्मेदारी अपने बेटे हुमल के सुपुर्द की और उनके बाद उनके दूसरे बेटे बशर को नबूवत मिली। कई मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यही बशर बाद में ज़वाल कफ़ल के नाम से जाने गए, एक ऐसा नबी जिसका नाम भी कुरान में आता है। यानी अय्यूब की कहानी सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनकी नस्ल में हिदायत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। उनकी तदफीन कहाँ हुई, उस पर भी रिवायात में इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ खुद इस बात की गवाही है कि उनकी याद कितने वसी इलाके में फैल चुकी थी। उराक के शहर हिल्ला में एक मकाम को उनकी सबसे मुस्तनद तदफीन गाह समझा जाता है। उसके अलावा उर्दन के शहर उस्सुल्त में, लुबनान के इलाके नीहा में और ओमान के शहर सलाला में भी ऐसे मकामात हैं जिन्हें लोग सदियों से हज़रत अय्यूब से मंसूब करते आए हैं। उलमा कहते हैं कि उनमें से कुछ मकामात महज यादगार और ज़ियारत के लिए हैं, जबकि हिल्ला वाला मकाम सबसे ज़्यादा तारीख़ी हैसियत रखता है। मगर हकीकत यह है कि उनका असल वर्सा किसी एक कब्र में महदूद नहीं, वो हर इस दिल में जिंदा है जो मुश्किल वक्त में सब्र का सहारा ढूंढता है। एक रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलतमंदों के सामने, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत लोगों के सामने और अय्यूब अलैहिस्सलाम को उन लोगों के सामने पेश करेगा जो मुसीबत और तकलीफ़ में मुब्तला रहे, ताकि वो देखें कि सब्र का अंजाम क्या होता है। ये कहानी महज एक कदीम किस्सा नहीं, एक ऐसा सवाल छोड़ती है जो आज भी इतना ही जिंदा है जितना उस दिन था, कि जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान के पास आखिर क्या बचता है। अय्यूब का पूरा सफ़र खुशहाली से तबाही तक और तबाही से दोबारा खुशहाली तक एक ही सबक देता है कि नेमतें इम्तिहान हैं, मुसीबतें भी इम्तिहान हैं, और दोनों हालतों में असल कामयाबी सिर्फ एक चीज़ में है, अपने रब की तरफ बार बार लौटना, चाहे हालात कैसे भी हों। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी जब कोई शख्स बीमारी, नुकसान या तन्हाई से गुजरता है तो उसे एक ही नाम याद आता है, अय्यूब, सब्र की अलामत, और उसकी बीवी वफ़ा की अलामत, दोनों मिलकर एक ऐसी मिसाल बने जो आज भी हर उस शख्स के लिए मौजूद है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। थोरू कुरानिक पाथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्र की ये कहानियाँ शायद किसी की ज़िंदगी बदल दें।